Greetings everyone and welcome to House of Intellectuals. Friends, today we are going to start our topic parts of speech. So far we have only focused on the concept of tenses, but you must know that parts of speech possesses the same importance as tenses. Think of it like that, tenses are the recipe but parts of speech are like ingredients. You cannot have that final product without the perfect ingredients. Same like that, you may have that strong command on tenses, but you won't be able to hold that grip on English language without parts of speech. We have 8 parts of speech. Those are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition. We will start from noun. I will tell you about each and every parts of speech individually in coming videos. So let's begin with noun. What are noun? What is noun? That is the question that pops up in our mind. Well, I will tell you about noun like a person, animal, place, idea, emotion. These are names. Name of these things are equal to noun. Wherever you have the name of a person, animal, place, idea, emotion, you can think of like that name is in that sentence is noun in English grammar. Now I am sure that you have understand the basic concept of noun, and now I will tell you about the examples. Examples are Ali, a name, a person, animal, lion, place, Pakistan, idea or emotion can be attributed to love. Now we have all the examples of noun. Now you understand that I haven't told you the long and boring definition of noun, because I will not bore you with these kinds of boring things. What I want is a concept, as I have already mentioned in one of the earliest video on this channel, that it is all about concept. It is not about memorizing things. It is not about the right definition. All it is about how your mind perceives things. Same like that, all you have to remember is a person, animal, place, idea or emotion. Their name becomes noun. Simple as that. Now let's talk about types of noun. Types of noun are very easy to understand. अगर हम जस्ट उनके वर्ड्स पर ही फोकस करें कि जो मिसाल के तौर पे अगर कॉमन नाउन है, तो अगर हम वर्ड सिर्फ कॉमन पर ही फोकस करें तो आपको बआसानी पता चल जाएगा कि हम नाउन की कौन से टाइप की बात कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन से मीनिंग, कॉमन जो वर्ड है इसका मतलब होता है आम, यानी कि आम तौर पर। अब कॉमन नाउन का क्या मीनिंग होगा कि आम तौर पर जो नेम्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है थिंग्स इन जनरल। थिंग्स इन जनरल के अगर हम आम मीनिंग में या आम तौर पर अगर किसी नाम को रेफ़र करें, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, द बॉय, कंट्री, थिंग। अब द बॉय मीन्स कि अगर एक रूम में जी 5-6 मेल्स बैठे हुए हैं, आप उन मेल्स 5-6 के जितने भी मेल्स बैठे हुए हैं आप उनको बॉय कहेंगे कि जी ये लड़के बैठे हुए हैं। तो उन 5-6 में जो एक कॉमन वर्ड है वो क्या आ रहा है जी, कि ये भी बॉय है, ये भी बॉय है। तो ये आपका जो वर्ड बॉय है ये आपका कॉमन नाउन बन जाएगा। इसी तरह देर आर मैनी टेरिटरीज इन द वर्ल्ड, देर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सबके अपने अपने बॉर्डर्स हैं। तो वो जो एक स्पेसिफाइड बॉर्डर है उसको हम क्या कहते हैं जी, कंट्री कहते हैं। पाकिस्तान भी जैसे एक कंट्री है, चाइना भी एक कंट्री है, ईरान भी एक कंट्री है। तो इन तीनों में आप कॉमन वर्ड क्या आ गया जी, कंट्री कॉमन वर्ड आ गया। तो जो वर्ड कंट्री है ये आपका कॉमन नाउन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें थिंग की, देर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस इफ़ वी ऑब्जर्व। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने चेयर पड़ी हुई है तो चेयर को भी हम थिंग कहेंगे, अगर हमारे सामने टेबल पड़ा हुआ है तो टेबल को भी थिंग कहेंगे। तो इन सारी चीज़ों में कॉमन वर्ड क्या आ गया जी, थिंग कॉमन वर्ड है, तो ये आपका कॉमन नाउन बन गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मतलब बाकायदा, सही तौर पर। थिंग्स इन स्पेसिफिक, थिंग्स इन स्पेसिफिक एक ख़ास या प्रॉपर, अगर आप किसी चीज़ को एक नाम दें जो किसी और का नहीं है तो वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल,
हमारे पास एक वर्ड है जी अली। अली जो है वो प्रॉपर नाउन है। किस तरह के, मैं आपको वो लास्ट एग्जांपल ही कोट करता हूँ यहाँ पर, कि जैसे रूम में अगर 5-6 बॉयज़ बैठे हुए हैं तो उन बॉय में एक का नाम जो है वो अली है, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ अली का जो है वो एक ही बॉय है, तो वो जो अली है वो उसका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्रांस। अब फ्रांस जो है जैसे एक कंट्री का नेम है, अब देयर आर मैनी टेरिटरीज जिनको हम कंट्री कहते हैं, और उस एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है जी फ्रांस। दुनिया में किसी और किसी कंट्री का नाम फ्रांस नहीं है, तो इसलिए फ्रांस जो है वो हमारे पास प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है आयरन। जैसा कि मैंने आपको बताया देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, जैसा कि टेबल, चेयर, तो आयरन भी एक थिंग है। आयरन इस्त्री करने वाली जो आयरन होती है, तो अगर हम उसी की बात करें तो वो एक थिंग है, तो उस थिंग को आपने आयरन का नाम दे दिया तो वो उसका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। उसी तरह लायन, देयर आर मैनी स्पीशीज इन द वर्ल्ड। अब एक स्पेसिफिक स्पीशी है, उसको हमने लायन का नाम दे दिया, तो जो वर्ड लायन है वो एक प्रॉपर नाउन बन गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्ड जो एब्स्ट्रैक्ट है इसका मीनिंग होता है कि वो चीज़ें जिनकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऐसी चीज़ें जिनको हम नाम देते हैं कि जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, सिर्फ उनको हम नहीं सकते हैं, ना उनको हम टच कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है थिंग्स विदाउट फिजिकल फॉर्म। थिंग्स विदाउट फिजिकल फॉर्म कौन कौन सी थी? अब हमारे पास जैसे कि एग्जांपल है लव, सैड, स्लीप। अब लव हो गया, सैड हो गया, स्लीप हो गया। स्लीप जो है वो एक एहसास है, लव और सैड जो है वो एक फीलिंग है। तो इन तीनों को आप देख नहीं सकते, इनको आप हाथ नहीं लगा सकते। दैट मीन्स दे आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन मतलब नाम से ही हमें पता चल रहा है कॉन्क्रीट के सख्त कोई हमारे पास जिसकी एक बॉडी है, जिसको फिजिकली हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जी थिंग्स विद फिजिकल फॉर्म। अब जी कौन कौन सी है? जैसा कि टेबल है, चेयर है, मेटल है। आप इन तीनों चीज़ों को देख भी सकते हैं, इन तीनों चीज़ों को छू भी सकते हैं, तो ये आपकी कॉन्क्रीट नाउन में आ जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास काउंटेबल नाउन। काउंटेबल जैसा कि नाम से ही क्लियरली पता चल रहा है कि जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को आप नंबर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि थिंग्स कैन बी नंबर्ड और काउंटेड। अब वो जी कौन कौन सी थिंग्स हैं जी? जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है 5 डॉग्स, 2 कार्स। कि अगर आपके सामने डॉग्स हैं जी, आप इजीली गिन के उनको नंबरिंग कर सकते हैं कि जी यहाँ पे देयर आर 2 डॉग्स, देयर आर 4 डॉग्स और 5 डॉग्स। इसी तरह हमारे सामने कार है जी, कार को हम बासानी कह सकते हैं कि जी देयर आर 3 कार्स, 4 कार्स, 2 कार्स। मतलब बासानी हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, हम उन्हें नंबर दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मतलब कि जिनको आप नहीं गिन सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या बन गया जी हमारे पास? थिंग्स कैन हैव अमाउंट और क्वांटिटी बट कैन नॉट बी काउंटेड। कि उनकी एक मिकदार है हमारे पास, लेकिन उनको आप नंबर में नहीं काउंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हमारे पास है जी वाटर, एयर, म्यूजिक। अब वाटर है, हम ये नहीं कह सकते जी हमारे पास 2 पानी है, हम कहते हैं कि या पानी थोड़ा होता है या पानी ज़्यादा होता है। एयर को हम ये नहीं कह सकते कि जी 2 हवाएं चल रही हैं, 3 हवाएं चल रही हैं। हम ये कहते हैं कि या तो एयर ज़्यादा है या तो एयर मतलब हवा तेज़ चल रही है या हवा कम चल रही है। उसी तरह म्यूज़िक है, हम ये नहीं कहते कि 2 म्यूज़िक, या तो म्यूज़िक लाउड है या म्यूज़िक स्लो है। तो ऐसी चीज़ों को जिनकी क्वांटिटी को आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन बन जाती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोजेसिव नाउन। पोजेसिव मतलब मलकियत। पोजेसिव नाउन मतलब क्या हो रहा है जी कि हमें ऐसे नाउन जो कि मलकियत को शो कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेट्स ऑनरशिप, के ये क्या कर रहे हैं कि जी मलकियत को जाहिर कर रहे हैं। किस तरह जी? आपके सामने एग्जांपल है कंट्रीज फ्लैग, मुल्क का झंडा, अलीज बुक, अली की किताब, अहमद हाउस, तो अहमद का घर। तो मतलब जो नाउन किसी की मलकियत को जाहिर कर रहे हैं तो वो आपके पोजेसिव नाउन बन जाते हैं।
नेक्स्ट है जी हमारे पास कंपाउंड नाउन। कंपाउंड मतलब दो चीज़ों से। अब यहाँ पे कंपाउंड नाउन की क्या डेफिनेशन हमारे पास या एक कॉन्सेप्ट हो सकता है जी, नाउन मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स। ये ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड नाउन सिर्फ दो नाउन से मिलकर ही बनता है, वो कोई भी वर्ड हो सकते हैं कि हमें बेसिकली दो वर्ड्स चाहिए कि अगर उनको कंबाइन करने से, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को अगर कंबाइन करें तो वो हमें नाउन के बारे में बताएं, तो वो आपका कंपाउंड नाउन बन जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा जी, यहाँ पे फुल मून। फुल मून, अब फुल जो है ये नाउन नहीं है, ये एक वर्ड है सिर्फ, और मून हमारे पास ऑल दो के एक नाउन है, लेकिन फुल मून कंबाइन कर दिया तो हमारा क्या बन गया जी, कंपाउंड नाउन बन गया। हमें पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि जी ये एक नाउन है कि पूरे चांद के बारे में हमें बता रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट है जी हमारे पास स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग वर्ड जो है ये भी नाउन नहीं है, पूल एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पे दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया जी, एक नाउन बना दिया। और टाइप्स ऑफ नाउन में ये पोजेसिव नाउन की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के ग्रुप्स में या एज अ होल जो है वो चीज़ों को करेंगे जी। आप मिसाल के तौर पे जी कि 5-6 लोग बैठे हुए हैं, अब आप 5-6 लोगों को इंडिविजुअली नहीं कहते जी, आप 5-6 लोगों को कहते हैं ग्रुप। तो वो आपने क्या करना है कि ऐसा नाउन जो कि 5-6 लोगों को या दो से ज़्यादा लोगों को या किसी चीज़ को भी एक वर्ड में एक्सप्लेन करे तो वो आपका कलेक्टिव नाउन बन जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेफर इन ग्रुप, कि कलेक्टिव नाउन क्या करता है, कलेक्टिव नाउन रेफर्स इन ग्रुप। एग्जाम्पल है जी हमारे पास क्लास। क्लास जो है वो 20 स्टूडेंट्स की हो सकती है, 30 स्टूडेंट्स की हो सकती है, 60 स्टूडेंट्स की हो सकती है। तो जब आप पूरी क्लास की बात करते हैं, आप इंडिविजुअली किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लेते, आप ये नहीं कहते स्टूडेंट 1 2 3, हम क्या कहते हैं जी क्लास। पूरी जब आप क्लास की बात कर रहे हैं तो वो एज अ होल हमें पता चल जाता है कि जी ये तमाम स्टूडेंट्स की बात हो रही है। इसी तरह टीम, एक टीम है जी, क्रिकेट टीम है या फुटबॉल टीम है, तो उसमें हम 11 खिलाड़ियों को ये नहीं कहते कि जी आप ये खिलाड़ी 1 है, ये खिलाड़ी 2 है, या प्लेयर 5 है, प्लेयर 6 है। हम एज अ होल कहते हैं टीम। तो टीम जो है वो पूरे के पूरे लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं। इसी तरह फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के परिंदों का एक हॉल जी उड़ रहा है, हम ये नहीं कहते कि जी ये एक परिंदा ये दूसरा परिंदा, हम एज अ होल कलेक्टिवली उनको नाम दे रहे हैं जी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जी ये कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों को, चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करें नाउन, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको नाउन की डेफिनेशन और नाउन के टाइप्स की विद एग्जाम्पल बआसानी समझ आई होगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर।